13th March 2026 Bangalore, in the heart of Shanthingar, a powerful message of unity and solidarity echoed as members of the Sunni Shia Unity Forum, Bangalore gathered to observe International Al-Quds Day, an occasion that highlights the collective voice of the Muslim community for justice and unity across the world. Organizers and community leaders reminded the gathering of the words of Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini al-Sistani of Najaf-e-Ashraf, Iraq, whose message resonates deeply. Across communities, Sunnis are our nafs, meaning our own selves. This powerful statement reflects a strong call for harmony, brotherhood, and mutual respect between Sunni and Shia Muslims, emphasizing that unity within the Muslim community is essential for peace and progress. Speakers at the gathering said Al-Quds Day is the day of Islam, a day dedicated to awareness, solidarity, and prayers for justice while also strengthening bonds among Muslims worldwide. Members of the forum highlighted that beyond political or geographical boundaries, the spirit of Al-Quds Day is about humanity, faith, and collective responsibility. Community representatives, youth leaders, and elders stood together, sending a message from Bangalore to the world that unity is the greatest strength of the community. The event concluded with prayers, reflections, and renewed commitment to peace, solidarity, and brotherhood as participants reaffirmed that the message of unity between Sunnis and Shias must continue to inspire generations. From Shanthingar in Bangalore, this is a reminder that faith, unity, and humanity remain at the heart of the message of Al-Quds Day. और का कॉन्सेप्ट था, हमने उस सेमिनार में जाके सुना, देखा, पहले से जानते थे लेकिन हमने उसको समझा। हमने ये भी देखा कि दरअसल ये जो एसिमेट्रिक वॉर है, जिसमें दुश्मन बड़ा है, मजबूत है, टेक्नोलॉजिकली पावरफुल है, लेकिन उसके साथ साथ जो मजलूम है, वो मजलूम भले ही है लेकिन वो बेचारा नहीं है। वो भी अपने हाथ में बंदूक उठा सकता है और वो उन बंदूकों से जिस तरीके से इस्तेमाल करके अगर उसके पास 303 है तो वो मशीन गन्स को कायदे की प्लानिंग से उसको दबा सकता है। मैंने ये 7 अक्टूबर 2023 में यहिया सिनवार जी से सीखा। उसके बाद कासिम सुलेमानी का दिमाग जो इन चीजों में पूरा एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा करने में था, शहीद हसन नसरुल्लाह का जो पूरा एक उनकी जो आइडियोलॉजी थी। हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठ के बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी नाइंसाफियां हिंदुस्तान में भी हो रही है। से इस्तेमाल करके अगर उसके पास 303 है तो वो मशीन गन्स को कायदे की प्लानिंग से उसको दबा सकता है। मैंने ये 7 अक्टूबर 2023 में यहिया सिनवार जी से सीखा। उसके बाद कासिम सुलेमानी का दिमाग जो इन चीजों में पूरा एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा करने में था, शहीद हसन नसरुल्लाह का जो पूरा एक उनकी जो आइडियोलॉजी थी। हम लोग देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठ के बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी नाइंसाफियां हिंदुस्तान में भी हो रही है। ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಒಂದು ದುರಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು। मैं कन्नड़ा बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? मैं भी उर्दू में बोलूं। ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ। ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಲಿಬಾಬಾ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎದ್ದಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮರೆಯುವವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು ಅಂತೇಳಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶದ್ದು? ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನ
ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅಂಧಭಕ್ತರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಏನು ಸುನ್ನಿ ಶಿಯಾ ಯೂನಿಟಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮಾಮ್ ಖೊಮೇನಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಅಲ್ ಖುದ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 1979. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1979 ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ को समझ सकना बहुत मुश्किल है। इमाम खोमेनी साहब का जो दूरंदेशी की नजर थी वो ऐसी थी 1979 में। मुझे कौन थे भी स्टेज के करीब ऐसा आए तो घबरा होता, चीटी दे डाल रहे, लंबे लंबे तकरीरें करते। तो 79 में जो एक बहुत बड़ी आवाज बनाकर जो बाहर लाए वो अल कुद्स डे। किसे पता था कि अल कुद्स डे के एक स्टेज पर उसी साल में एक पैदा होने वाला कोई एजे खान बात करेगा। ये हकीकी लीडर की दूरंदेशी की नजर होती है। और मैं समझता हूं, मैं यहां किसी डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करने को नहीं आया। 18 केसेस है, जो फैक्ट बोलना है, अगर वो बोलने के बाद 19वां भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल मैं किसी की चापलूसी करने के लिए तो नहीं आया। जो हिस्ट्री है और जो सच्चाई है मैं उसी पर बात करूंगा। सारी दुनिया मिलकर एक ऐसा डायलॉग बोलती है, वो क्या है? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। थाले मारो ना को पहले सुन लो। जिसकी जुबान से निकली बात उसकी परवरिश करने वाला हैदर अली, समझे? अब मेरे से बेहतर तुम्हें जानती है हैदर किसका नाम। खामोशी से चलने वाला शेर तो नहीं हो सकता हैदर। अब जिसका बाप हैदर अली था उसकी औलाद बोलेगी ही बोलेगी क्या? जिंदगी शेर की तरह एक दिन जीऊंगा, गीदड़ की तरह 100 साल की नहीं। अच्छा, तो मैंने जो अब कहा वो 200 साल पुरानी बात है। चलिए 10-15 दिन पहले वाली बात ले लीजिए, खामनी साहब तक। हम जिन उन उस्ताद के साथ में हमने जहां सीखा, अम्बेडकरिज्म सीखा, इस्लाम सीखा, वहां पर एक बात कही जाती थी। वो बात ये थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद लोगों को हकीकत में चुन लिया है। मेरी बहन ने एक बड़ी बेहतरीन कुरान की आयत कही थी, बल हुम अदल, जालिका कला नाम। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्लियरली सर्टिफिकेट दी है, जो अपने लिए जीता है वो जानवर जैसा है। उसके आगे की आयत बल हुम अदल, जानवर से भी गया गुजरा है। तो आज हमारे गिराबान में झांक कर देखना है हमको, हम कहां खड़े हैं। शुरू से लेकर आखिर तक हक और बातिल की लड़ाई होती आई है। कभी बातिल नमरूद बना था, कभी बातिल फिरौन बना था। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के वक्त में एक बात कही थी। अबू जहल के सर को किसी ने लाकर पेश किया तो उन्होंने कहा था, आज के दौर का फिरौन मर गया। चैनलों को देखते हैं, इंसान नहीं दिखता सिर्फ आतंकवाद, जेनोसाइड नहीं दिखता है जिहाद। इंसान नहीं दिखता सिर्फ आतंकवाद, जेनोसाइड नहीं दिखता है जिहाद। सबको टीवी देख के लगी नफरत की चर्बी, अरे टीवी देख के लगी नफरत की चर्बी। झूठ से मोटे हुए मुर्गा और मुर्गी, अमेरिका अमेरिका अमेरिकन वार पार
वार, अमेरिकन वार, अमेरिकन वार पार डाम। आगे बढ़ने से पहले अपने विश्व गुरु को भी सलाम देते हुए जाना।